a retreat center. Exactly. Right. Yeah. So basically, it was very difficult for us to come up with something which is very unique and which will make the traditional practice of yoga liked by the youths today. So basically, today we are focusing on the youth, where they can go back to the basic life, reconnect with themselves. So, and the whole motto of Adesa is to take this wellness on a whole another level and promote a healthy holiday kind of a thing. So we have designed wellness retreat programs where people will be taken to locations which are closer to nature, where they can get away from the busy life schedules and practice yoga and reconnect to their own selves and come up with, they themselves will realize what kind of happiness and what kind of feeling it gives to by practicing these kind of ancient arts that we have. And yoga has become very more like accepted now. It's in vogue. It's in vogue, but we are not trying to manipulate the traditional method of yoga. So the directors, he has also thought of it, taking the basics out of the country. So we have all the westerns coming in India. So this time the Adesa approach is little different. So they are taking the Indianness out of westerns. If you want to talk about the vision also. So we are planning to enter Dubai, Malaysia, Hong Kong, Singapore market very soon. India is itself a big market. So once we go ahead and cater the Indian citizens, we are looking forward to cater the international NRIs as well as the foreigners over there. We're talking about Bollywood actually. Right. Do you have any people from Bollywood who are really Yes. you are connected with them? Yes. Or like they are Yes. Right. So what we're doing is it's very interesting. Like you guys and the celebrities are the first go-sayers. So what we're doing is in Adesa, the first workshop will be only dedicated to media fraternity and to the celebrity fraternity. So it will be only focused about their life, because you guys have very odd working hours. So does the celebrities. So Adesa's workshop will be So it's for media dedicated and for them. celebrities, Yeah. yes. Okay, who will be your targeted audience, and once you are done with India, is there chances possible to be expansion of this, as you said right now? Samitha will answer that. Our target audience is basically anyone and everyone, right from the age group of 16 years to 80 years, because we believe that yoga is made for everyone. It does not distinguish. Actually, when I used to do a lot of yoga, and I had actually gotten addicted to it. मैं actually कभी gym के लिए भी सुबह उठी नहीं हूँ, पर योगा के लिए मेरा इंस्ट्रक्टर आता था घर पर at 8 o'clock in the morning, and I used to literally wake up at 7 because मैं खाली पेट तो कुछ नहीं कर सकती. So I used to 7 o'clock wake up, eat a little bit, and then wait for my yoga teacher to come. And उसके बाद I used to do yoga. तो एक कुछ phase था in my life about 3 months where I used to do vigorous yoga. But उसके बाद फिर वो shooting ऐसी हमारी शुरू हो जाती है. You guys know यार how we shoot. तो उसके बाद फिर time नहीं मिलता है. But then वही होता है कि फिर like I was saying 24/7 जो gyms होते हैं this that, तो फिर वो हम join कर सकते हैं. उसमें अगर yoga classes होती हैं तो then we can do all of that. But not really. तो वो एक phase था when I used to do yoga, and that's about it. But I used to really enjoy it. What is your fitness mantra? My fitness mantra is eat healthy, which I have started doing now. Otherwise, मैं total junk food खाती थी. But अब जाके मैं थोड़ा सा consciously I've made an effort कि मैं थोड़ा सा healthy खाऊं, like salads and stuff. So and obviously drink a lot of water is what I feel is my mantra. What do you say about the new start? People have started a yoga, they've taken a new initiative. What's Yes. your take on that? I really like their motive. The whole mantra for them is healthy living, and I think that is the most important in today's times because everybody is into आजकल मैं मतलब Instagram पे भी देखती हूँ तो everybody is just posting their videos जिसमें वो लोग workout कर रहे हैं and somebody is doing yoga and somebody is doing Pilates and तो it's actually motivating. It's actually very it's like an inspiration कि आप उनको देखो and you feel like doing it. So I think a wellness center like this will always help because there are a lot of people who love yoga. तो वो यहाँ पर आएंगे and for them to have a good healthy life is all that they need anyway. Okay, what happening on professional? I'm doing a show on Colors which is called Savitri Devi College and Hospital, and I'm doing a cameo in Ganga which is on गुरु जो हैं रामदेव महाराज जी,
उनको तो सभी फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत हम भी फॉलो कर लेते हैं। योगा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आदमी का मन और तन दोनों शांत होता है, बहुत ही तंदुरुस्त रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। योगा सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि योगा से ही सारी की सारी जितनी भी एक्सरसाइज निकली सारी योगा से निकली है। एक योगा से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो उम्र बढ़ते बढ़ते आदमी का रिदम जो होता है, श्वास का रिदम जो होता है वो बदल जाता है। तो वो श्वास का रिदम जो है वो वापस लाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो योगा से होता है, जिसकी वजह से आदमी को तंदुरुस्त रहने में हेल्प करता है। योगा इज़ अल्टीमेट। योगा से बढ़कर कोई एक्सरसाइज नहीं है। वो कितने सालों से चला वो पूरा उसका योगा का हर चीज़ चला रहा है। वो यहीं से ईजाद हुई थी, वर्ल्ड में चली, चाइनीज़ लोगों ने उन्होंने अपनाया। तो आई थिंक योगा से आज सप्पलनेस बनती है, बॉडी की हर बीमारियाँ गायब होती है। मुझे नहीं लगता कि रामदेव बाबा को कोई बीमारी होती होगी, क्योंकि वो हर बॉडी हर पार्ट इतने योगा में इस्तेमाल होता है कि बीमारी का कोई रास्ता ही नहीं पड़ता। तो आई थिंक कैंसर सेल्स वगैरह जो भी आप डायबिटीज़ होती है या ब्लड प्रेशर जो भी है, वो बिकॉज एक तो इरेगुलर खाना, इरेगुलर स्लीप और स्ट्रेस, ये सारी चीज़ योगा दूर करती है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि इस एडिसा वेलनेस जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस खुले योगा के लिए, तो आदमी को दो कदम चल के योगा क्लासेस मिलना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत आलसी हो गए। अरे कहाँ जाएंगे आधा किलोमीटर, वो आधा किलोमीटर नहीं चल सकते। इसलिए दो डोर के बाद, यानी दो घर के बाद, दो बिल्डिंग के बाद ऐसे वेलनेस सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पे योगा सिखाते हैं। सर, ये भी कहना है आज प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री रीमा लागू जी का निधन हुआ, बहुत दुख की बात है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितना बड़ा लॉस इंडस्ट्री के लिए है? लॉस तो हर आर्टिस्ट के जाने पे होना ही है इंडस्ट्री को, चाहे रीमा लागू जी हों, चाहे छोटे में छोटा एक्टर हो। लेकिन बात ऐसी है कि रीमा लागू जी बहुत ही फेमस, बहुत ही नामचीन एक्ट्रेस थी, तो उनको लोग ज़्यादा याद करते हैं। वैसे काफ़ी सारे हमारे और भी एक्ट्रेस जो हैं इससे पहले जा चुके हैं, तो उनको याद ज़्यादा रखते नहीं, बिकॉज उनको वो लोग फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी वक्त हो गया बाहर हो चुके होते हैं। इसकी वजह से तो मेरा ये कहना है कि लॉस तो हर आर्टिस्ट के जाने से होता है इंडस्ट्री को। ये बात सही कहा आर्टिन ने कि लॉस तो हर एक्टर क्या हर इंसान के जाने की बात होता है, सब किसी ना किसी की ज़िंदगी में। और रीमा जी तो बहुत नामचीन एक्ट्रेस थी और बहुत ही अच्छी इंसान थी। मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया उनके साथ, एंड शी वाज अ वंडरफुल लेडी एंड अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। बट यही कहते हैं ना कि इंसान जब वक्त आता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, योगा भी नहीं रोक सकता। तो बस यही है कि वक्त है तो आदमी को जाना है। बट इट्स अ बिग लॉस टू द इंडस्ट्री एंड डिसअपॉइंटमेंट इन पीपल्स हार्ट कि इतनी यंग एज में वो नहीं जानी चाहिए थी। 59 इज़ नॉट एन एज टू डाई। खैर, बट गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू। Roll. Yeah, roll. Are you rolling? Are we good? Oh, hi. How are you? Hello. रोल क्या करने है सर? Are we rolling? योगा मेरे ख्याल से इस वक्त और आज के दिन में इतना ही ज़रूरी है जितना सारी नेसेसिटीज़, जैसे पानी, जिस तरह से हवा, सांस लेना। आई थिंक योगा उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज इतना स्ट्रेस है लाइफ में, लोगों की इतनी भागा दौड़ी है, स्पेशली बॉम्बे शहर में, जहाँ पर हर वक्त मेरे ख्याल से वी आर ऑलमोस्ट लिविंग 24/7, देयर इज़ नो स्टॉपिंग एनीथिंग। सो योगा हेल्प अस टू मेक श्योर आवर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग एंड वी फोकस ऑन लाइफ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लाइक ही सेड, हमारी जो आज की लाइफ है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट फील्ड से हो, स्ट्रेस जो है वो सबकी लाइफ में है। सो आई थिंक योगा से अगर आप अपना दिन शुरू करते हैं, जब भी करते हैं, उससे आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। आई थिंक उससे बेटर स्टार्ट आपके डे का नहीं हो सकता है। हमारे जितने भी एल्डरली थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो हमेशा इतने हेल्दी इसलिए रहते थे क्योंकि वो योगा करते थे। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में हम लोग वापस स्टार्ट करें। सर, आप ये पूछना रीमा लागू जी का निधन हुआ, आज इतनी वेटरन एक्ट्रेस की, इतनी फिल्मों में काम किया, आप नामकरण भी नजर आ रही थी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितनी दुखद बात है? हम लोग आई थिंक वी हैव ग्रोन सीइंग हर, और उनकी सबसे मेरी फेवरेट फिल्म मैंने प्यार किया, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म विच आई रिमेंबर, एंड आई वुड जस्ट से दैट वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट एंड यू नो दिल से रेस्ट इन पीस, एंड जहाँ पर भी आप हैं खुश रहें, और यू नो इसी तरीके से जिस तरीके से आपने हमेशा यू नो एज एन एक्टर जन्म लिया, आप अगले जन्म में भी एज एन एक्टर जन्म लें और अच्छे काम करें सामने के। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? यार इसमें मतलब अभी हम लोग कुछ भी बोलते हैं बहुत कम होगा, बट मेरा डे स्टार्ट हुआ था उस खबर से। जब मैं उठा था तो मैंने वो न्यूज़ पढ़ी और बहुत ही दिल को दुख पहुंचा था।
वन ऑफ योर फिल्म्स इफ आई हैव टू से हम आपके हैं कौन, यू नो लोकनाथ जी के साथ उनका, बट यू नो 59 की एज में यू नो इट्स टू अर्ली फॉर एनी वन टू लीव, एंड रीमा लागू जी बीइंग सच अ ग्रेट एंड सच अ सीनियर एक्ट्रेस, बहुत ही बुरा लगा, बट क्या कर सकते हैं। एंड मेश और सोल रेस्ट इन पीस, हमारी दिल से यही तमन्ना रहेगी, अब जहाँ भी